بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو پائیں گے. کتنا سنجیدہ آپ اس مسئلے کو مانتے ہیں؟ اس کو دو حصے میں آپ تقسیم کریں. پہلا حصہ تو پارلیمنٹ کا ہے جی، اور یہ صحیح بات ہے کہ وہ 35 سے ہم 28 آئے ہیں، بہت ہی تشویش کی بات ہے. دوسری طرف اسمبلیز ہیں. اس الیکشن کے بعد جو اتنی بھی اسمبلیز کے الیکشنز ہوئے ہیں، چاہے وہ آسام میں ہو، چاہے ویسٹ بنگال میں ہو، چاہے یو پی میں ہو، ایون بہار میں ہو، ہر جگہ مسلمانوں کی اسمبلیز میں سیٹس بڑھی ہیں. تو اس لیے دو حصے کو پہلے کلیئر کر لیجیے. جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے، 28 سیٹ پہ ہم آئے ہیں. 35 سیٹ پہلے تھا اور 780 کینڈیڈیٹ اس کے خلاف مسلمان الیکشن لڑے. جب 780 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے جس میں 50% انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے، تو نیچرلی ووٹ بٹے گا. نیچرلی ووٹ بٹوانے کی کوشش کی جائے گی. نیچرلی ڈمی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جائے گا. اس کا امپیکٹ اس پہ پڑنا ہی ہے. رہا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ جس کمیونٹی کی بھی ریپرزنٹیشن صحیح ہوتی ہے اور اگر وہ کمیونٹی سے پارلیمنٹ کے اندر دلچسپی رکھتا ہے، پارلیمنٹ کا دستوری حصے سے اگر وہ واقف ہے، پیپل ریپرزنٹیشن ایکٹ سے وہ واقف ہے، تو کبھی کبھی تعداد کم بھی ہو تو وہ اپنی بات کو بہت ہی شاندار اور پرزور انداز سے رکھتا ہے. اور کبھی کبھی ایسے بھی لوگ آتے ہیں، آواز میں جان نہیں ہوتی، معلومات کی کمی ہوتی ہے، نہ دستور کی خبر ہے، نہ مسلمانوں کے حالات کی خبر ہے، مگر یہ تشویشناک یقیناً ہے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. بالکل. اور یہ سوال آپ سے بھی رہے گا، جو تعداد جو ہے وہ لگاتار کم ہو رہی ہے، اور پارلیمنٹ کی بات ہم پہلے کر لیتے ہیں. پارلیمنٹ کی تعداد جو ہے وہ کم ہوئی ہے، مطلب آپ جو ہے 12 یا 15% ہیں، یا ایک جو آنکڑا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، سرکاری جو ایک آنکڑا ہوتا ہے، اس کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تعداد بہت ہی کم ہے. کتنا تشویشناک ہے اور کتنا آپ مانتے ہیں کہ یہ واقعی جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اب وقت آ گیا ہے، سوچنا سمجھنا چاہیے اور اس تعداد کو بڑھانا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ فگرز اٹھا کر کے دیکھیں پچھلے سارے الیکشنز کے، تو اس میں صرف 1980 کو چھوڑ کر کے باقی جب مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن جو ہے 10% رہا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی جو ہے پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں ان میں 2 سے لے کر کے 7% تک مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن رہا ہے. یہ تعداد اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی جو ہندوستان میں تقریباً 15% ہے، اس کے اندر 2%، 3%، 4% ریپرزنٹیشن رہنا یہ بہت تشویش کی بات ہے. اور اس کے اثرات دوسری چیزوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں اگر مناسب نمائندگی نہیں ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مناسب نمائندگی نہیں ہونے کے پیچھے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ ڈمی کینڈیڈیٹس اور پارٹیاں کھڑی کر دیتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ خود حکومت کی پالیسیاں جو ہے اس کے لیے بہت بڑی وجہ ہیں، جس کی وجہ سے مسلم ریپرزنٹیشن دن پہ دن گھٹتا جا رہا ہے. بالکل. اور عرفان صاحب آپ کے پاس آئیں گے. کیا بی جے پی میں بھی کئی بار اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر ہوتا ہے کہ بھائی اس طبقے کی نمائندگی بھی بڑھنی چاہیے؟ یہ نمائندگی بڑھنی چاہیے، سبھی پارٹیوں میں بڑھنی چاہیے، میں اس کے فیور میں ہوں. لیکن ساتھ کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے اتر پردیش میں ہماری سماجوادی پارٹی کی جو سرکار ہے، تو ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ وہ کتنے بڑے مسلمانوں کے علمبردار اس کے سرپرست بنتے ہیں. ان کا ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے سماجوادی پارٹی کا لوک سبھا میں نہیں ہے. اور جو 28 کی آپ بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آڈینس میں بھی بیٹھے ہیں اور ڈاک صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں. ان 28 کے آپ نام بھی نہیں بتا سکتے، کس لیے کہ ہم گونگے اور بہرے کی طریقے سے بیٹھے رہتے ہیں. وہ 2-4 ممبر آف پارلیمنٹ کے علاوہ تو جانتا بھی نہیں کسی کو کوئی. وہ صرف ڈائری میں یا اس کی ایک ڈائریکٹری میں ان کا ضرور نام لکھا ہوا، یا پارٹی کے یہاں ضرور ان کا نام لکھا ہوا کہ ہمارے یہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے. یو پی میں سن 1980 میں 16 یا 17 ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے تھے، اب یہ 4 یا 5 ہی ہیں. اور میں اتنے بڑے جو ہے علمبردار کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کا ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے. لیکن جب ان سے بات کرو گے تو وہ کہیں گے میرے سے زیادہ تو مسلم مسائل کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ریپرزینٹیشن کم ہے، تو اگر کم ہے تو وہاں کم سے کم پارلیمنٹ میں اس کو اٹھائیں تو صحیح، مسلم کاز کی بات تو کریں. اس کی کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی میں کم ریپرزینٹیشن ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں ہمارے ایک ہی ممبر آف پارلیمنٹ سید شاہنواز حسین صاحب ہیں. ان کی آپ جب بھی پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ مسلم مسائل کے بارے میں اور دیش کے مسائل کے بارے میں وہ بولتے ہیں.
आपने देखा भी होगा जी। इस चीज का बिल्कुल जो है गवाह सारे टीवी चैनल्स भी हैं। अंसार साहब बताइए, आपको क्या कितना संजीदा मसला है ये? नुमाइंदगी कम हो रही है, जब आपके नुमाइंदे होंगे नहीं तो आपके मसलों को उठाएंगे कैसे वो? हमारी जो लीडरशिप की गिरावट जो है, वर्कर पॉलिटिशियन के बीच में एक सगे भाई और बच्चे का रिश्ता होता है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियन की आप कह रहे हैं, जब एक पार्लियामेंट में विधानसभा में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि जितने भी हमारे जो असेंबली में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी ओहदे पे जाके बैठे हो, सबसे पहला काम क्या होता है उनका, किसी भी आप इसमें ना कि भाई हमारे बच्चे को, हमारे खानदान को, हमारे लोगों को राज्यसभा में इस जगह पे कैसे भेजा जाए। वर्कर की कोई कदर नहीं होती है, वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है, इलाके का कोई मामला नहीं होता है, इलाके की कोई समझ नहीं होता है, इलाके कहां जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, खसारे में जा रहा है, फायदा में जा रहा है, नुकसान सिर्फ उनको दिखता है। तो हमारी जो कौम की जो आज ये खस्ता हालत हुई है, सिर्फ हमारी लीडरशिप की प्रॉब्लम की वजह से हुई है। अब बताइए ऐसा कौन सा लीडर है, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी में हो, बीजेपी में हो, समाजवादी में जो कौम के लिए जाके कुछ करता हो। एक मंच सजाया जाता है, वहां पे कौम की तो बात एकदम डेफिनेट करेंगे, आएंगे, हमारी पार्टी टिकट देगी, जब भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां जाके आप जाके इलेक्शन लड़ो। हम जाएंगे वहां से इलेक्शन, कहेंगे भाई साहब मैं सेकुलर हूं, ये क्या नाम है, मैं कौम के नाम पे आऊं, आप मुझे वोट दो, आप मुझे असेंबली में भेजो, हमें आप वहां पे। लेकिन वहां पे जाने के बाद में वो सेकुलर हो जाते हैं, कौम को भूल जाते हैं। आपका कौम कैसे बढ़ेगा? आप जिस कौम से आ रहे हैं, सबसे पहला फिक्र आपको उस कौम का रखनी पड़ेगी, उस कौम को लेके आगे आनी पड़ेगी। उस जो कौम ने आपको जिता के भेजा, उसके लिए आपको मैदान में आना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके स्कूल में उसके बच्चे के लिए फिक्र करना पड़ेगा, उसके लिए रोड पे आना पड़ेगा। आप सोचेंगे जब मैं यहाँ पे जाकर वहां सेकुलर बन जाऊं, ये नहीं चलेगा। ये कौम के साथ में सरासर गद्दारी है, कौम के साथ में धोखाधड़ी है। इसे हमारे भाइयों को, हमारे लीडरान को बचना चाहिए, जब तक हमारी कौम आगे नहीं आएगी। जी बिल्कुल। आज हमारे मिसाल में हम बात करें कि असेंबलीज और पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदे कैसे बढ़ाया जाए, नुमाइंदगी को कैसे जो है वो उसमें इजाफा किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे मसाइल और आज हम बात करें मुस्लिम नुमाइंदगी की। पार्लियामेंट और असेंबलीज में, स्टेट असेंबलीज में ये नुमाइंदगी कम हो रही है। कई जगह हम देख रहे हैं कि ये कम होती जा रही है। क्या वजह है और इसके असरात क्या होते हैं? डॉक्टर मंजूर आलम साहब, हमने कहा कि भाई एक तो हम ये देख लें कि अलग अलग पार्टी से जो है वो, अगर हम कांग्रेस की बात करें 10 सांसद उसके जीते हैं, लेकिन समाजवादी से नहीं है। और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत बड़ी तादाद है ऐसी, मतलब बहुत 7-8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां आपकी नुमाइंदगी हो रही है पार्लियामेंट में, बाकी जगह जीते ही नहीं है। तो वो जब जीत करके आएंगे नहीं किसी स्टेट के, ठीक है आपकी आवाज को दूसरे लोग उठा लेंगे, लेकिन आपका नुमाइंदा जो है, आपकी कम्युनिटी का जो नुमाइंदा है, वो जब पहुंचा ही नहीं तो आवाज कैसे उठेगी अच्छी तरीके से? वही बात मैंने पहले कही थी और वो यही है कि असर जो है इसके वो बहुत ज्यादा गलत होते हैं। 7 वहां है, 6 वेस्ट बंगाल से हैं और बाकी जगहों पे कुछ जगहों से। सबसे अफसोस का पहलू है कि महाराष्ट्र से एक भी नहीं है, कर्नाटक से एक भी नहीं है, मध्य प्रदेश से एक भी नहीं है, वगैरह वगैरह। देखिए, इसको पहलू इस तरह से हम लेके चले कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन देता है, लेजिस्लेशन इस पर बेस करता है कि कौन से इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स नेशन के हैं, कम्युनिटी के हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन के लोगों के हैं। उसमें पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज होते हैं उसका अहम रोल होता है। और जब ये बात आती है तो उसकी एनालिसिस के लिए, उसके प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्रॉपरली व्यू डालने के लिए अगर उस कौम का कोई नुमाइंदा नहीं है तो सही तरह से तज्जिया नहीं हो सकता है। और अमूमन एक आदमी अगर भूखा है तो वो भूख की कैफियत को सही तौर से जानता है, और एक बहुत अच्छे से खाया हुआ है तो अल्फाज में वो भूख की कैफियत नहीं बयान कर सकता है। तो इसलिए पार्लियामेंट के अंदर ये जरूरी होता है कि वो कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन दे ताकि अपनी बात को रख सके। और जब ये कम होता है तो फिर हमें बहुत ही ऑनेस्टली एनालिसिस करने की जरूरत है और ये बात जानने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस बात को एकोमोडेट किया है कि एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटीज, क्रीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। और जब उसको फुलफिल करने के लिए यह आजादी दी गई है और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एकोमोडेट किया है, तो कभी कभी स्ट्रेटजी बनाए बगैर हम वहां कूदते हैं। स्टडी ये होना चाहिए, हमेशा कामयाब होता है कि आपके इश्यूज क्या है और वोट आपके सिर्फ हर आदमी को एक ही हासिल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या चपरासी हो और प्यून हो। अब वो वोट तो आप नहीं ज्यादा बढ़ा सकते चाहे कितने भी संगीन मसले से जा रहे हो, और आपको संगीन मसला मालूम है और पार्लियामेंट में हमारा रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। तो उस सूरत हाल में अपने वोट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता, जिसे हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स को क्रिएट कैसे किया जाएगा। हम उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए कभी ये महसूस करते हैं कि अहमद और जैद और बकर बेकार है, उसकी जगह पे कोई और 3 आदमी को खड़ा कर दो, और वो 3 आदमी चाहे इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो। कभी हम ये समझते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेकार हैं, इसलिए कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट किए जाए। कभी हम ये समझते हैं कि सारे लोग बेकार हैं, इसलिए हम ही बेहतर हैं, हम उसमें कूद जाएं। यहां पूरी स्ट्रेटजी फेल्योर है कि हम न पॉलिटिकल प्रेशर बनाना जानते हैं, न स्ट्रेटजी क्रिएट करना जानते हैं कि अपनी आवाज को कैसे हम बढ़ा सकें, किसके जरिए बढ़ा सकें, और मुस्तकबिल की पॉलिसी मेकिंग में हम वो पॉलिटिकल प्रेशर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। हम इस वक्त किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे। इन जनरल जो सिचुएशन है, नतीजा क्या होता है कि बेशतर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के जमानत जब्त होते हैं, बेशतर नई पॉलिटिकल पार्टी के जमानत जब्त होते हैं, बेशतर ऐसे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी ने डमी के तौर पे खड़ा कर दिया, उसको कुछ पैसे मिल गए, कुछ वोट लेकर चले गए, अच्छे कैंडिडेट का भी दिवालिया निकाल दिया। तो एज ए होल, चूंकि हम बहुत वाइडली डिवाइडेड हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो या पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझ पा रहे हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेटर एंड स्पिरिट्स है, उसके जो फंक्शन है, उसको नहीं हम समझ पा रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ जज्बात के रौ में जज्बातियत का रास्ता इख्तियार करते हुए अपने ख्वाहिश की तकमील के लिए, अपनी तंजीमों की तकमील के लिए या अपने मफाद के पूरा करने के लिए हम कूदते हैं, जिसका नतीजा ये होना ही है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होगा। बिल्कुल इरफान साहब, 9 स्टेट्स में ही सिर्फ आपको जो है पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी मिल रही है। 26 ऐसे स्टेट्स हैं या फिर जो है केंद्र शासित राज्य भी उनमें शामिल हैं जहां से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं जीता है। बहुत सारे स्टेट्स के नाम आपने भी गिनवा दिए, यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। आपको लगता है कि ये जो वहां से कोई चुन करके नहीं आ रहा, उसके पीछे की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये भी चीज सामने आती है कि जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टीज कह लो, छोटी पार्टियां हैं, जो भी हैं, वो टिकट ही नहीं देती, वो अपने नुमाइंदे मैदान में उतारती ही नहीं है। तो जब मैदान में नुमाइंदे उतरेंगे नहीं तो फिर जीत करके कहां से आएंगे? अगर कोई मुस्लिम को कोई टिकट भी देता है तो हमारी कौम में क्या होता है, जो बिल्कुल डाक साहब ने बोला है, उसमें 75 तो वहां आदमी खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद में जो है बिल्कुल ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बनाते कि भी जो इनमें ईमानदार है, अच्छा है, किसी भी पार्टी से हो, XYZ किसी भी पार्टी से हो सकता है, तो हम उसको कम से कम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजें। उस पीरियड में भी जो है वो उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। और ये हकीकत है कि जो जज्बातों की राजनीति करता है, जिसका डेवलपमेंट से कोई लेना नहीं देना नहीं, उसके बाद में पूरे 5 साल सिर्फ ऐसे इशू को वो तलाशता रहता है कि मैं किसी भी तरीके से जो है अपनी कौम के दिलो दिमाग पर छाया रहूं और मैं काम ना करूं, सिर्फ वो वाली बात करूं और फिर दोबारा पहुंच जाऊं। तो इस चीज पर भी हमारी कौम को, मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हम भेजें जो हकीकत में हमारे डेवलपमेंट के लिए, अपनी कौम के लिए काम कर सकें। उन पर ध्यान देना चाहिए। अब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां अगर 30%, 40% वोटर्स हैं, तो ये हकीकत है कि सारी पार्टियां मुस्लिम उतार देती हैं, कुछ और इंडिपेंडेंट भी उतर जाते हैं, कुछ रीजनल पार्टीज भी उतार देती हैं, ये हकीकत है। लेकिन उनमें उनका सबसे बड़ा यही इम्तिहान होता है। ये तो इतना बड़ा हथियार है हमारे पास वोट का, तो हम किसी को भी जो है अर्श पर पहुंचा सकते हैं और किसी को भी जो है जमीन पर भेज सकते हैं। तो उसका सही हम इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, वही जज्बात में बहकर जो ये सब काम करते हैं हम। अंसार साहब ने एक और इशू उठाया था कि भाई आपको जो है वो टिकट मिल गई, आप जीत भी गए, लेकिन पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद, असेंबली में पहुंचने के बाद या MLC बनने के बाद जो है आप वो कम्युनिटी के मसलों को, उनके इश्यूज को भूल जाते हो, बाकी दूसरे जो मामलात हैं उनमें उलझ जाते हो। ये भी क्या, ये भी एक वजह है कि भाई वो लोग वोट देते ही नहीं हैं। सेकुलर होना कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जिस एरिया से भी जीत कर आए हैं, आप उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA हैं या MP हैं या उस स्टेट के MLC हैं या उस स्टेट के राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो कोई आदमी आपको नहीं रोक रहा किसी भी काम करने के लिए। ये तो हम खुद अपनी ही ऐसी छवि बना लेते हैं कि भाई मैं तो अगर जो है माइनॉरिटी का हूं तो इसके बाहर जाकर काम नहीं करूंगा, अगर मैं मेजोरिटी का हूं तो माइनॉरिटी में जाकर काम नहीं करूंगा। तो आपको तो सच्चाई तो यह है कि मैं अगर MLA हूं तो उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं। पॉलिटिकल पार्टीज के नीयत के ऊपर यूं भी शक होता है कि भाई ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाया तो आपके पास जो है दूसरा तरीका है, आप राज्यसभा में भेज दीजिए। लेकिन अगर राज्यसभा की बात हम करें तो 242 में से महज 25 जो है वो मुस्लिम है, यानी तकरीबन 10% के आसपास ये जो है ये नुमाइंदगी जो है वो आती है। आपको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भाई ठीक है, हम कहते हैं कि भाई वोटर्स तो वोट देते नहीं है या बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की नीयत भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है या फिर वो कम्युनिटी के प्रति उतनी ईमानदार नहीं है जितना उनको होना चाहिए? मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है, उसके पीछे 2 बुनियादी वजह है। पहली वजह तो यह है कि पिछले 65 सालों में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुकूमतें रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या किसी भी पार्टी की रही हो, उन्होंने मुसलमानों के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया है। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी क्या नाम है, आजादी के वक्त नौकरियों में तकरीबन 35% हुआ करती थी, जो आज घटकर के 2% रह गई है। तो एक तो ये मायूसी की कैफियत जो है हमारे वोटर्स के अंदर पैदा हो गई है, मुस्लिम वोटर्स के अंदर खास तौर से, कि कोई भी पार्टी उनके मसले में संजीदा नहीं है। इसलिए अब मुसलमानों का दिन पे दिन वोटिंग परसेंटेज भी आमतौर पर घटता जा रहा है। तो एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि मायूसी की कैफियत मुस्लिम वोटर्स के ऊपर पैदा हो गई है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हम बात सेकुलरिज्म की करते हैं, बात दस्तूर की करते हैं। दस्तूर में जो कुछ लिखा हुआ है कि साहब मजहब की बुनियाद के ऊपर, जात पात की बुनियाद के ऊपर, जबान की बुनियाद के ऊपर कोई तफरीक नहीं होगी, लेकिन जब हमारी पार्टियां टिकट देने का वक्त आता है तो वो इन तमाम उसूलों को बालाए ताक रख देती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान से 25 जो है पार्लियामेंट की सीटें हैं,
लेकिन कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एक उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उतारा था। वो भी असल में देखिए ऐसा है कि कभी कभी जो है लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए एक आध सीट दे दी जाती है, लेकिन वो सीट ऐसे मुकाम से दी जाती है जहां खुद पार्टी ये मान के चलती है कि यहाँ हमारी जीत नहीं होने वाली है, तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो एक सीट दी गई थी। अच्छा, तो वो चीज ये तो बिल्कुल सही सही है। यही सवाल मैं आपसे करूंगा, आप डॉक्टर मंजूर आलम साहब, कि ये जो हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जिनके पास जो है वो एक अच्छा कहा जाए एक अच्छा हथियार है, असेंबली जो है वो असेंबली में उनकी नुमाइंदगी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से जो है वो फिर राज्यसभा में पहुंचते हैं लोग, वो वहां पर अपने रोल को अदा नहीं करते या ईमानदारी से जो है वो उनको जितनी सीट्स उनको देनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चर कमेटी की अगर आप जो है ना वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, इसमें भी ये कहा कि भाई ठीक है, अगर आप लोकसभा में जो है नहीं जीत करके आ रहे कि नहीं वजूहात के चलते, तो आप जो है राज्यसभा में उनको भेज दीजिए, वहां नुमाइंदगी इनकी बढ़ाइए। तो ये जो नीयत पर सवाल है, ये जो है आपको भी लगता है कि नहीं वाकई ही नीयत है साहब जो है वो नहीं है पार्टीज की? नीयत के बारे में तो यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि बिल्कुल मुसलमानों के सिलसिले में बहुत साफ नहीं है। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं, उससे चीजें और आसान होगी और अपनी बात रखता हूं। जब सीताराम केसरी प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी थे, तो एक मीटिंग जिसमें डॉक्टर ए.आर. किदवाई जो गवर्नर और मैं सिर्फ 3 आदमी थे, और हम उनसे ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ तुम्हारी कम्युनिटी एक ऐसी है कि जो भी उसके एमपीज बन के आते हैं या एमएलसी बन के आते हैं या एमएलए बन के आते हैं, वो मुसलमानों के मसाइल को उमूमन नहीं उठाते हैं, अपने मसले को ज्यादा उठाते हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है कि उनके मसले को हल कर दूं, लेकिन ये हमारे लिए मुश्किल है कि सारे मुसलमानों के मसाइल को हल करूं। ये एक हकीकत है, मगर उसमें और भी पहलू उलझे हुए हैं। उलझे हुए ये हैं कि एक कैंडिडेट जैद नाम का है, जिसको दिया गया कंस्टिट्यूएंसी ए से, और वहां दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी मुसलमानों को दे दिया। जहां तकरीबन 50% सीट है, यानी आबादी है, उसमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी पार्टियों ने दे दी और इंडिपेंडेंट को भी छोड़ दीजिए। एक फितरी हिस्सा होता है कि जिस कैंडिडेट को सीट दिया गया है उसके अपने भी लोग होते हैं उसके चारों तरफ, वो उसको हरगिज बैठने नहीं देंगे। अब यहां पे मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि टैक्टिकल इलेक्शन कैसे अख्तियार करें। टैक्टिकल इलेक्शन का मानी यह है कि अगर कोई किसी कैंडिडेट का क्रेडेंशियल अच्छा नहीं है, उसको माइनस करते हुए जो बाकी कैंडिडेट है उसमें विनेबल कौन है, जो विनेबल है उसे सपोर्ट किया जाए। अगर विनेबिलिटी विद द पर्सनल हिस्से को स्क्रीन करते हुए अगर वोट डाला जाए तो यकीनी तौर पे वो टैक्टिकल इलेक्शन की नतीजे में परसेंटेज बढ़ेगा। दूसरा पहलू क्या है, देखिए, जब हालात आप उस दौर को दीजिए जब नेहरू जी की जिंदगी थी, अबुल कलाम आजाद थे, और अबुल कलाम आजाद को भी सीट वहां दिया गया जहां परसेंटेज मुस्लिम ज्यादा थे। वो आजादी के फौरी हालात थे। इसका मतलब यह है कि बायस एंड प्रिजुडिस हर जगह काम शुरू से कर रहा है, और जब कर रहा है तो आपको जो भी कैंडिडेट मिल रहा है उस कैंडिडेट को विनेबल बनाने के लिए ये जिम्मेदारी है। एक और पहलू है कि ये बात सही है कि राज्यसभा का एक जरिया है, चूंकि पॉलिसी बनानी है, तो एक दूसरा पहलू भी है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं होती जिसके अंदर बहुत सारी कमिटी सब कमिटीज नहीं होती, और अगर सब जितनी भी कमिटीज हैं, चाहे वो फुल कमिटीज हो या सब कमिटीज हो, अगर उसमें मुसलमानों के नुमाइंदे वहां हो तो पॉलिसी मेकिंग में वो जो एक डिफिसिट नजर आती है या कमी नजर आती है, इसको अगर फर्दर आगे बढ़ाना है तो स्क्रीनिंग स्टेज पे मुस्लिम नुमाइंदा होना चाहिए, ताकि स्क्रीनिंग में वो जो एप्लीकेशंस है उसको किनारे न फेंक दे, सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी को न दे। तो ये तमाम नियत के बावजूद नियत की खराबी है। डेमोक्रेसी की रूह इस पर कायम है कि आप जद्दोजहद कैसे करते हैं। और आखिरी बात इस पहलू में वो ये है कि
मायूसी किसी चीज का हल नहीं, और मायूसी के नतीजे में मुसलमानों की मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हो जाए तो स्पेस तो नैरो है भाई। एक स्पेस हैदराबाद का है, वो ऑलरेडी फुल है, केरला का है वो फुल है, आसाम का फुल है, और जो बाकी लोग हैं मुख्तलिफ स्पेस अवेलेबल है जिसमें बहुत नैरो स्पेस है। तो आखिर इस नैरो स्पेस में सारी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, जो तनहा यूपी में ऑलमोस्ट 11 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किधर जाएंगे? वो हमारे पास आएंगे ना। तो अब हमें तय करना है कि भैया हम जीतने वालों के पास जाना है या जज्बात के और किसी बिल्कुल। और यहाँ एक अहम इशू ये भी उठा है कि बहुत सारी बातों के अलावा कि क्या मुस्लिम तबके में सियासी बेदारी जो है उसकी कुछ कमी है, सियासी शऊर जो है वो पैदा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। पार्लियामेंट और असेंबलीज में मुस्लिम नुमाइंदगी की तादाद जो है वो कम हो रही है, या फिर कहा जाए मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो रही है, इसी पर हम बात करें। और ब्रेक में जाने से पहले बहुत सारी बातें आई थी और एक अहम सवाल ये आया था कि क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है। आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, अलग अलग जगह जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, आपको क्या लगता है क्या ये शऊर कम हुआ है या बेदारी बढ़ी है? उस बेदारी बढ़ने के भी नुकसान होते हैं कई बार। उससे सब शऊर है हमारे, ऐसा नहीं है कि हमारी माइनॉरिटी में शऊर नहीं है, लेकिन उसको इतना दबाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिहार की बात करूं तो हमारे वहां जो लीडर हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं, रामविलास पासवान है। तो हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। उत्तर प्रदेश में हम आते हैं तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी ने, वो पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। अगर हम कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में उस टाइम पर जो है अभी मरहूम उस टाइम अर्जुन सिंह जी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट थे, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। तो हमारे यहाँ जो है वो इतनी बेदारी होनी चाहिए, किसी भी एक के पीछे कम से कम जो है अपने अपने एरिया वाइज, जैसे सपोज करो इन्होंने भी अपनी एक पार्टी लॉन्च करी हुई है, तो कम से कम जो है जिस एरिया से भी ये लड़े तो वहां पे इनको तो लीडर माने आदमी, लेकिन वहां किसी दूसरे को लीडर मानेंगे, वहां अशोक गहलोत जी को लीडर मानेंगे जो पूरी तरीके से जो जिन्होंने मुसलमानों को इस्तेहसाल पूरे 5 साल करा उनको लीडर मानेंगे। अगर हम दिल्ली में आएंगे तो शीला जी को लीडर मानेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हमने खुद अपने लीडर क्यों नहीं बनाया? करेक्ट, हमें खुद जो है इस चीज पर गौर फिक्र करना चाहिए। और अगर कोई चुनाव लड़ता है किसी भी पार्टी का हो तो आप उनमें ये देखिए कि कौन आदमी अच्छा है, कौन हमारी मतलब लीडरशिप कर सकता है,
कौन हमारे मसाइल को उठा सकता है, कौन आवाम से जोड़ सकता है। तो इन चीजों पर हमारा गौर व फिक्र खुर्शीद साहब होना चाहिए। डॉक्टर मंजूर साहब, एक तो सवाल यही है कि क्या कौम में जो है वो सियासी बेदारी की कमी है, सियासी शऊर की अगर मैं बात करूं उसकी थोड़ी बहुत कमी आपको नजर आती है, या फिर वो बढ़ गया है जिसके नुकसान भी कई बार होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि मुस्लिम वोटर्स को जो है वो भी तकसीम करने की, या मुस्लिम वोट बैंक को भी तकसीम करने की कोशिश की जाती है। आपको लगता है एक तरफ तो सियासी